स्क्रीन विजिबल है? स्टार्ट करें। यस सर। हेलो, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्टार्ट करें। यस सर। हेलो अपेक्षा, कृपा, नैया। यस सर। यस सर। यस सर। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है? रिप्लाई करो। यस सर। आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही है, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? यस सर। यस सर। आप लोगों की वॉइस मुझे नहीं आ रही है। टेक्स्ट मैसेज करके मुझे रिप्लाई करो, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? टीम के अंदर ही जो टेक्स्ट मैसेज का कन्वर्सेशन है वहाँ पे टाइप करके मुझे रिप्लाई करो। ओके। माइक की सेटिंग एक बार आप लोग चेक करो सभी। इसके पहले आपकी वॉइस आती थी मुझे प्रॉपरली। आज के लेक्चर में ऐसा है कि आपकी वॉइस नहीं आ पा रही है। हेडफोन को आप फिर से लगाइए। रिप्लाई करो नैया। यस सर। हेलो हुसैना। किसी की भी आवाज़ नहीं आ रही है, क्या बात है? क्यों ऐसा हो रहा है? गुड मॉर्निंग सर।
ओके, अभी रिप्लाई करो। Yes, sir. Yes, sir. ऑल राइट। ओके, स्क्रीन विजिबल है सभी को? स्टार्ट करें? Yes, sir. All right. So let's begin the session. This is lecture number 36. And we have already started unit number 3. And this is the memory management part 4. So let's brief the last lecture. That is the best way to understand. In the last lecture, we have discussed some dynamic memory allocation, dynamic memory partitioning technique. And for allocating a particular block to a process, we have to follow some algorithms. There are 3 basic algorithms that is used to allocate partitions to the process: best fit, first fit, and next fit. There is a problem in dynamic partitioning technique that is called external fragmentation. We have already discussed about it. And the solution of external fragmentation is compaction. That is already we have discussed. Now we will move ahead and we'll take a next partitioning technique that is very important as far as GTU is concerned. GTU mostly ask this kind of questions: what is paging? Explain the logical to physical address translation mechanisms with suitable example. What is paging? Partition memory into small equal fixed size chunks and divide each process into the same size of chunks. Chunks means a piece of data, piece of process, that is called chunks. Means if we divide a process into same size of chunks, then each chunks is called page. So a process can be divided into multiple fixed size of chunks, and each and every chunks is called page. So chunks of process are called pages. And similarly, the chunks of memory are called frames. So we have to understand two concepts in the paging. So before understanding paging technique, how it works, why it is called paging, first of all, we have to understand pages and frames. So let's understand with diagram.
Okay, so let's continue. Paging technique. And in which paging technique we have to understand two concepts. First is pages and second one is frames. If you understand pages, it is chunks of processes. It is called pages, and frames is chunks of memory. Here chunks means fixed size piece, or you can say simple piece of process and piece of memory, but it should be equal size. That is called chunks. And chunks of the process are called pages, and chunks of the memory are called frames. So if you analyze, let's suppose this is the entire primary memory locations. This is the operating system resident part. Kernel area, you can say. And this is the user area. Let's suppose this is the process P1, and the context of process will be stored in the pages, and pages will be divided. What we can say, if it allocate to the memory, this is the equal size of chunks of the process. So process P1 having 4 chunks, we can assign the number also. This is 1, 2, 3, and 4. So there are 4 chunks of process P1. Each chunks is having the same size, and each and every chunks having the context of process P1. Maybe some chunks store data portion, maybe some chunks stored stack section, text section, it may be anything. So entire process divided into fixed size of chunks, fixed size of pieces. Each piece is called page. And because process P1 having 4 chunks, so 4 chunks of process are called pages. So depending upon the context of the process, it can have n number of chunks. Now, while allocating that process P1 to the memory, so we have to divide memory into fixed size of partitions. Let's suppose this is the fixed size of partitions. So entire primary memory locations divided into equal size of chunks.
equal size of chunks and about memory, if we divide entire memory into equal size of chunks, then each chunk is called frame. So this is actually a frame number 1, frame number 2, we can say frame number 1, frame number 2, frame number 3, and frame number 4. So there are two concepts. First one is pages, second one is frames. Pages of process will load into the frames. That is the concept of paging. We will understand what kind of technique it is. But first of all, we have to understand what is pages and what is frames. तो अगर हम किसी प्रोसेस को इक्वल साइज के पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके पूरे कॉन्टेक्स्ट को हम इक्वल साइज के चंक्स में डिवाइड कर देते हैं, तो हर एक चंक्स को बोला जाता है पेज। तो इस तरह प्रोसेस कई सारे चंक्स में डिवाइड हो जाती है, उसको हम कहते हैं पेजेस। हर एक पेज, प्रोसेस का हर एक पेज को एग्जीक्यूट होने के लिए प्राइमरी मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, और प्रोसेस का हर एक पेज प्राइमरी मेमोरी में एक पर्टिकुलर फ्रेम के अंदर लोड होता है। तो पेजेस फ्रेम के अंदर अब लोड होने स्टार्ट होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पेज नंबर 1 फ्रेम नंबर 1 में लोड हुआ, पेज नंबर 2 फ्रेम नंबर 2 में लोड हुआ, एंड पेज नंबर 3 फ्रेम नंबर 3 में लोड होता है, एंड पेज नंबर 4 फ्रेम नंबर 4 में लोड होता है। अभी जरूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस 1 2 3 4 ही हो, प्राइमरी मेमोरी में किसी भी लोकेशन पर प्रोसेस के पेजेस लोड हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ऐसा समझते हैं। सो एक प्रोसेस के कई सारे पेजेस हो सकते हैं, और हर एक पेज को हमें प्राइमरी मेमोरी देना पड़ता है उनको लोड होने के लिए। तो इस तरह से हर एक पेज को हमें प्राइमरी मेमोरी देनी है, तो प्राइमरी मेमोरी इक्वल साइज के चंक्स में डिवाइड होती है, जिसको हम फ्रेम्स कहते हैं। इस तरह से प्राइमरी मेमोरी में कई सारी फ्रेम्स डिज़ाइन होती है, और इन फ्रेम के जो नंबर होते हैं, जो फिजिकल एड्रेस होते हैं, उनको हमें एलोकेट करना होता है पेजेस को, कि पेज नंबर 1 किस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर में जाने वाला है। तो ये जो डिसीजन है, एक पेज टेबल होता है, वो अभी मैं डिस्कस करता हूँ। एक पेज टेबल के थ्रू एड्रेस ट्रांसलेशन होता है। ये लॉजिकल एंटिटी है, पेजेस हमेशा लॉजिकल एंटिटी होती है, यह हमेशा ध्यान रखना है। पेजेस इज ऑल अबाउट लॉजिकल एंटिटी, और जो फ्रेम्स है दैट इज फिजिकल एंटिटी। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जो पेजेस हैं वो हार्ड डिस्क के एड्रेसेस होते हैं, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑलरेडी हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, और हार्ड डिस्क के एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस से रेफर करते हैं, जो कभी चेंज नहीं होता। इसी तरह से जो फिजिकल एंटिटी है फ्रेम्स, इसको हम फिजिकल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी के फिजिकल एड्रेस होते हैं। तो ये हमने जो डिज़ाइन किया हुआ दैट इज़ अ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हमेशा हम फिजिकल एड्रेस से रेफर करते हैं। प्राइमरी मेमोरी में हर एक फ्रेम का एक पर्टिकुलर फिजिकल एड्रेस होता है 32 बिट का। यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए हमने कुछ नंबर लिख दिए हैं, दैट इज़ फ्रेम नंबर, बट ये एक्चुअल में बाइनरी फॉर्मेट में 32 बिट का कंप्लीट एड्रेस होता है। तो आई होप आपको यहाँ पे यहाँ तक क्लियर हुआ होगा कि मैं पेज किसको बोलता हूँ और फ्रेम किसको बोलता हूँ।
यहाँ तक अगर डाउट है तो क्वेश्चन करो, उसके बाद मैं पेजिंग टेक्निक स्टार्ट करता हूँ। कोई भी एक रिप्लाई करो। आज आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि हुसैना रिप्लाई करो। ओ, हुसैना लेफ्ट हो गई। निधि रिप्लाई करो आप। ओके, अब आपकी आवाज़ आ रही है। तो यहाँ तक सभी को समझ आया? अपेक्षा, कृपा, Yes, sir. नैया, रोशनी, Yes, sir. बुराउद्दीन, हुसैना, हुसैना अवेलेबल हो? Yes, sir. ओके, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा पेजेस का और फ्रेम का। तब अब मैं स्टार्ट करता हूँ पेजिंग टेक्निक। पार्टीशन मेमोरी इनटू स्मॉल इक्वल फिक्स्ड साइज चंक्स एंड डिवाइड ईच प्रोसेस इनटू द सेम साइज ऑफ चंक्स। इस तरह की जो पेजिंग टेक्निक है, इसमें हमें सबसे पहले जो भी मेमोरी के पार्टीशंस है उसको हमें इक्वल साइज के चंक्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिसको हम फ्रेम कहते हैं। और प्रोसेस को भी हमें इक्वल साइज के चंक्स में डिवाइड करना पड़ता है, जिसको हम फ्रेम पेजेस कहते हैं। तो चंक्स ऑफ प्रोसेस इसको हम कहेंगे पेज, और चंक्स ऑफ मेमोरी इसे हम कहेंगे फ्रेम्स। ये है पेजिंग हार्डवेयर, किस तरह से मैपिंग होती है। सीपीयू, पेज टेबल, फिजिकल मेमोरी एंड लॉजिकल मेमोरी। जस्ट मैंने अभी आपको इन्फॉर्म किया था, जस्ट बताया था कि हम लॉजिकल एड्रेसेस हमेशा हार्ड डिस्क के एड्रेस को रेफर करते हैं, क्योंकि हमारे प्रोग्राम्स हार्ड डिस्क में स्टोर होते हैं। हार्ड डिस्क का हर एक सेक्टर का जो एड्रेस है, या ट्रैक का जो एड्रेस है, या सिलेंडर का जो एड्रेस है, दैट इज ऑल अबाउट लॉजिकल एड्रेसेस। सो लॉजिकल एड्रेसेस को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है फिजिकल एड्रेसेस में। दैट मीन्स अगर कोई भी प्रोग्राम जो हार्ड डिस्क में स्टोर है, अगर हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, सो उस प्रोग्राम को प्राइमरी मेमोरी में आना जरूरी होता है। यह अभी तक की नॉलेज हमारे पास है कि कोई भी प्रोग्राम को अगर एग्जीक्यूट करना है तो उसे प्राइमरी मेमोरी में होना जरूरी है। और प्राइमरी मेमोरी में आने के लिए उसको कोई ना कोई फिजिकल एड्रेस असाइन करना जरूरी है, राइट। सो फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है हमें लॉजिकल एड्रेस को, क्योंकि एक प्रोग्राम हार्ड डिस्क में स्टोर है, उसका एक प्रॉपर लॉजिकल एड्रेस है, और उस लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है। तब जाकर हमें एक पर्टिकुलर रैम का फ्रेम नंबर मिलता है, एक फिजिकल एड्रेस मिलता है, और फिर उस फिजिकल एड्रेस में हम उस प्रोग्राम के डेटा को लोड करना स्टार्ट करते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि ट्रांसलेशन कौन करेगा, राइट। और लॉजिकल एड्रेस कौन जनरेट करेगा? तो इसका आंसर होगा सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, और पेज टेबल लॉजिकल एड्रेस से फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन करेगा, राइट। तो यहाँ पर कुछ ब्लॉक डायग्राम दिखाई दे रहे हैं आपको। सीपीयू दिखाई दे रहा है, पेज टेबल दिखाई दे रहा है। पेज टेबल में दो कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, एक तो पेज का जो बेस नंबर है, जो इंडेक्स नंबर है, और दूसरा है फिजिकल एड्रेस का फ्रेम नंबर। तो यहाँ पे दो इंफॉर्मेशन आपको दिखाई दे रही है, 0, 1, 2, 3 ये है पेजेस के नंबर, और 20, 24, 4 और 8 यहाँ पे एग्जाम्पल के फॉर्म में लिया हुआ है बेस एड्रेस, या फिर आप कह सकते हैं फिजिकल मेमोरी का फ्रेम नंबर, राइट। और यहाँ पर कुछ फिजिकल मेमोरी है जिनका बाइट नंबर दिया हुआ है 0 से 4, 4 to 8, 8 to 12। ये इस पर्टिकुलर फ्रेम नंबर से रिप्रेजेंटेड है, और हर एक फ्रेम नंबर में 4 अल्फ़ाबेट स्टोर्ड है। तो बाइट नंबर 4, 5, 6, 7
इन 4 लोकेशन पे IJKL इस तरह से 4 अल्फ़ाबेट स्टोर्ड है। ये प्राइमरी मेमोरी में स्टोर्ड है क्योंकि यहाँ पे फिजिकल मेमोरी लिखा हुआ है। इसी तरह 8, 9, 10, 11 इस पर्टिकुलर एड्रेसिंग पर अल्फ़ाबेट MNOP ये लोडेड है प्राइमरी मेमोरी में। इसी तरह से 20 से लेके 23 तक 20, 21, 22, 23 यहाँ पे 4 एड्रेसिंग है और 4 एड्रेसिंग में अल्फ़ाबेट ABCD लोडेड है। तो यहाँ पे जो हम फिजिकल मेमोरी में जो अल्फ़ाबेट लोड करा रहे हैं उनका एक पर्टिकुलर बाइट ऑफसेट नंबर है। जैसे मैं कहूँ कि K किस लोकेशन पे स्टोर है तो आपको बाइट ऑफसेट का जो फ्रेम का जो बेस एड्रेस है 4 के बाद आपको इंडेक्स नंबर पे जाना पड़ेगा 0, 1, 2, 3। तो जो K है वो 2 पोजीशन पे स्टोर है। तो यदि मैं आपको कहूँ कि 4th नंबर पे जाओ और 2 नंबर के इंडेक्सिंग या 2 नंबर के बाइट ऑफसेट को रीड करो तो रीड करने के बाद आपका रिजल्ट होगा कि आपने अल्फ़ाबेट K को रीड किया। यदि मैं कहूँ आपसे कि 20 नंबर के फ्रेम पर जाओ और 3 नंबर के बाइट ऑफसेट पे जाओ, कौन सा अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है वो आप मुझे बताओ। तो 20 नंबर के फ्रेम नंबर में जाकर जब हम बाइट ऑफसेट नंबर 3 को रीड करते हैं तो 0 पर A अल्फ़ाबेट स्टोर है, 1 पे B अल्फ़ाबेट स्टोर है, 2 पे C अल्फ़ाबेट स्टोर है और 3 पे D अल्फ़ाबेट स्टोर है। तो आपका आंसर होगा कि 20 फ्रेम नंबर का या 20 बेस एड्रेस पर जो 3 नंबर की इंडेक्सिंग पर अल्फ़ाबेट स्टोर है वो है अल्फ़ाबेट डी। तो इस तरह से प्राइमरी मेमोरी में हर किसी का एक पर्टिकुलर बेस एड्रेस होता है और बेस एड्रेस के अंदर कुछ बाइट ऑफसेट नंबर होते हैं, उनका इंडेक्स नंबर होता है। उससे हमें पता चलता है कि वो अल्फ़ाबेट किस लोकेशन पे हमें मिलेगा। अब ये अल्फ़ाबेट यहाँ पे जो स्टोर है जैसे IJKL है, MNOP है, ABCD है, EFGH है, ये अल्फ़ाबेट किसी न किसी प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट हो सकते हैं, किसी न किसी प्रोग्राम के डेटा हो सकते हैं और ये प्रोग्राम इनिशियली लोडेड होते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। तो हार्ड डिस्क का भी आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जैसे 0 नंबर का जो पेज नंबर है, क्योंकि हार्ड डिस्क यहाँ पे इसका जो नंबर दिया हुआ है 0, 1, 2, 3 है और हर पेज के अंदर 4 अल्फ़ाबेट स्टोर है। सो पेज नंबर 0, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 एंड पेज नंबर 3। पेज नंबर 0 को हमने 4 इंडेक्स में कन्वर्ट किया, 0, 1, 2, 3 और उसमें अल्फ़ाबेट को स्टोर किया है ABCD। तो ये लॉजिकल एड्रेसेस है 0, 1, 2, 3 और ये लॉजिकल बाइट ऑफसेट नंबर है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दिस इज ऑल अबाउट। ओके, सो यहाँ पे दो क्वेश्चंस माइंड में आपके आने चाहिए कि सीपीयू किस तरह का एड्रेस जनरेट करता है, लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है या फिजिकल एड्रेस जनरेट करता है। तो इसका आंसर होगा सीपीयू हमेशा हार्ड डिस्क में जो प्रोग्राम स्टोर है उनके लिए एड्रेस जनरेट करता है, उसे हम कहते हैं लॉजिकल एड्रेस। सो सीपीयू ऑलवेज जनरेट लॉजिकल एड्रेस। अब पेज टेबल की रिक्वायरमेंट यहाँ पे इसलिए पड़ती है क्योंकि सीपीयू ने जो लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था उस लॉजिकल एड्रेस को हमें फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना होता है, ट्रांसलेट करना होता है। ट्रांसलेट करने के बाद हमें पर्टिकुलर लोकेशंस पता होती है और फिर हम उस लोकेशन पर जो फ्रेम नंबर की लोकेशन है वहाँ पर हम डेटा को रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस तरह का एक पूरा कॉन्सेप्ट होता है पेजिंग का, इसलिए इसको कहा जाता है पेजिंग हार्डवेयर टेक्निक्स। Every address generated by CPU is divided into two parts. CPU के थ्रू जो एड्रेस जनरेट होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, पेज नंबर P and page offset D. So in the diagram you can see the page table. Each and every page table contains the two basic information. First is page number, and page offset. So this is the page table having two different information.
First is page number, as I told you just 0, 1, 2, 3. This is the page number. And page offset. Page offset will understand later. When the CPU generate the logical address, I will told you what is the page byte offset or page offset, that is D. So page number is used as an index into the page table. So whatever the page number generated by the CPU, this will indicate the base address of a page table. The page table contains the base address of each page in physical memory. So पेज टेबल के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बेस एड्रेसेस होते हैं कि पेज नंबर 0 प्राइमरी मेमोरी में किस लोकेशन से स्टार्ट है. सो पेज नंबर 0, ये रहा हमारा पेज नंबर 0. इसके अंदर 4 अल्फ़ाबेट्स है ABCD. तो पेज नंबर 0 प्राइमरी मेमोरी में कहाँ से स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे आप प्राइमरी मेमोरी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 20 एड्रेस से स्टार्ट है पेज नंबर 0, 1, 2, 3 के अल्फ़ाबेट्स. तो हमें पेज टेबल में क्या मेंशन करना पड़ता है कि पेज नंबर 0 प्राइमरी मेमोरी में किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है. पेज नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी में किस लोकेशन से या किस एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 24. तो आप पेज नंबर 1 देखो और पेज नंबर 1 कहाँ से स्टार्ट होगा, 24 से. तो ये रहा हमारा 24 और 24 पर आपको क्या अल्फ़ाबेट दिखेंगे, EFGH. और यहाँ पर आप पेज नंबर 1 देखोगे तो EFGH. तो ये कंटेंट हमें लोड करना है 24 लोकेशन से. अब क्योंकि 24 लोकेशन में आपको 4 इंडेक्सिंग मिलने वाली है, 0, 1, 2, 3. तो उस इंडेक्सिंग पर हम EFGH को लोड कर देते हैं. This base address is combined with the page offset to define the physical memory address that is sent to the memory unit. The logical memory shown is simply for visual reference. Let us consider an example. अब हम इसको आगे बढ़ते हैं. अभी तक हमने ये समझा कि CPU जो एड्रेस जनरेट करेगा वो एक लॉजिकल एड्रेस होगा और उस लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट होंगे, पेज नंबर होगा और एक ऑफसेट होगा. पेज नंबर को रेफर करने के लिए हमारे पास पेज टेबल होता है. पेज टेबल में भी दो एंट्री है, एक है पेज नंबर और एक है फिजिकल मेमोरी का बेस एड्रेस. तो इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास इस थ्योरी पोर्शन में है जो डायग्राम के थ्रू मैंने आपको एक्सप्लेन किया. अब इसके आगे बढ़ते हैं कि अगर सपोज सीपीयू कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, लेट सपोज वो लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट हैं, P और D. P मतलब होता है पेज नंबर और D मतलब होता है बाइट ऑफसेट. किस पेज में किस नंबर की इंडेक्सिंग के अल्फ़ाबेट को हमें रीड करना है. इसका मतलब ये हुआ कि पेज नंबर 1 में आपको कौन सा अल्फ़ाबेट को रीड या राइट करना है. तो यहाँ पे 2 का मतलब हुआ कि आपको 0, 1, 2 दैट इज थर्ड नंबर का जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपको रीड करना होगा पेज नंबर 1 में. तो यदि हम पेज नंबर 1 में देखें तो ये रहा हमारा पेज नंबर 1 हार्ड डिस्क में और हमें तीसरा अल्फ़ाबेट रीड करना है, बाइट ऑफसेट नंबर 2 रीड करना है. तो 0, 1, 2 यहाँ पे 4, 5, 6 को आप कंसीडर करो 0, 1, 2. तो 2 नंबर पर अल्फ़ाबेट है G. तो ये G को हमें या तो लोड करना होगा या तो रीड करना होगा. तो कोई भी एक ऑपरेशन हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं, बट यहाँ पर अभी हम क्या करने वाले हैं, हम फिजिकल एड्रेस जनरेट करने वाले हैं. तो लॉजिकल एड्रेस के बेस पर ही फिजिकल एड्रेस जनरेट होता है. तो लॉजिकल एड्रेस में दो पोर्शन है, पेज नंबर और बाइट ऑफसेट. पेज नंबर रेफर करता है पेज टेबल से. पेज टेबल के दो पोर्शन है, पेज इंडेक्स नंबर और बेस एड्रेस नंबर. तो पेज नंबर 1 के लिए हमें फिजिकल एड्रेस जनरेट करना है. तो पेज नंबर 1 में इंफॉर्मेशन है 24. तो 24 का मतलब क्या हुआ कि पेज टेबल ने ये इंफॉर्मेशन दी कि पेज नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी में 24th नंबर के एड्रेस से लोड करना स्टार्ट करो, राइट. यदि हम राइटिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो 24th नंबर की लोकेशन पे जाओ और 0, 1, 2 मतलब कि थर्ड नंबर के इंडेक्सिंग पर जो अल्फ़ाबेट है वहाँ पे उसे लोड कर दो, या फिर रीड करना हो तो वहाँ उस लोकेशन पर जो डेटा है उसको रीड कर लो.
तो इस तरह से लॉजिकल एड्रेस फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट होता है। और नेक्स्ट पोर्शन जो रहता है कि 24 जो है वो पेज नंबर 1 से रिप्लेस हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। फिर से मैं एक बार आपको बता दूं, सबसे पहले सीपीयू ने लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया था। लॉजिकल एड्रेस में उसने दो इंफॉर्मेशन पास करी, कौन सा पेज नंबर और उस पेज में कौन से नंबर का अल्फ़ाबेट उसको रीड करना है या राइट करना है। राइट। सीपीयू किस बात में इंटरेस्टेड है कि उसे पेज नंबर 1 में सेकेंड इंडेक्सिंग पर जो अल्फ़ाबेट है उसे उसको रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, क्योंकि यूज़र ने उसे रिक्वेस्ट की थी कि पेज नंबर 1 में थर्ड लोकेशन पर जो अल्फ़ाबेट है उसे सपोज रीड करना है। तो ये रीड रिक्वेस्ट के लिए सीपीयू लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर देता है और प्रॉपरली उस अल्फ़ाबेट तक पहुंचता है और उसको रीड कर लेता है। अब क्योंकि सीपीयू डायरेक्टली फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं कर सकता है, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में प्रोसेस बार बार शिफ्ट होते रहती है। राइट। इसलिए किसी भी प्रोसेस का एक परमानेंट एड्रेस कभी भी प्राइमरी मेमोरी में नहीं होता, इसलिए सीपीयू कभी भी फिजिकल एड्रेस जनरेट नहीं कर सकता। अब जो लोकेशन और जो एड्रेस हमेशा फिक्स होते हैं, जो बदलते नहीं हैं प्रॉपरली रनिंग टाइम पे, वो है लॉजिकल मेमोरीज। इसलिए हार्ड डिस्क की लोकेशन पर जो प्रोग्राम है वो हमेशा वहीं रहते हैं, एक्सप्लिसिटली प्रोवाइडेड कि यूजर जब उनको कॉपी पेस्ट करे या कट कॉपी पेस्ट करे तभी उसकी लॉजिकल मेमोरी बदलती है। राइट। तो यहाँ पे ये माना जाता है कि लॉजिकल मेमोरी हमेशा फिक्स रहती है। प्रोग्राम के जो डेटा है जो हार्ड डिस्क में स्टोर है उनके एड्रेसेस चेंज नहीं होते हैं। इस एजम्पशन के साथ सीपीयू हमेशा उन लॉजिकल पेजेस को जनरेट करता है, उनके एड्रेस जनरेट करता है और उन अल्फ़ाबेट को लोड करने का ट्राई करता है प्राइमरी मेमोरी में। तो लॉजिकल एड्रेस के दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो पेज नंबर और उस पेज के अंदर कौन सा बाइट ऑफसेट या किस इंडेक्सिंग के अल्फ़ाबेट को रीड करना है जिसके लिए फिजिकल एड्रेस बनाना है। और फिर पेज जो लॉजिकल एड्रेस का जो पेज नंबर है वो आगे रेफर करता है पेज टेबल से। पेज टेबल में उसे ये पता चलता है कि पेज नंबर 1 प्राइमरी मेमोरी में किस फ्रेम नंबर्स में लोड होना स्टार्ट होगा। तो यहाँ से उसको मिल जाता है बेस एड्रेस। तो जैसे बेस एड्रेस 24 मिलता है, ये बेस एड्रेस रिप्लेस हो जाता है 1 की जगह पर और लॉजिकल एड्रेस फाइनली कन्वर्ट हो जाता है फिजिकल एड्रेस में। तो अब ये फिजिकल एड्रेस है, यहाँ पे फ्रेम नंबर आ चुका है 24। अब यहाँ पे पेज नंबर नहीं रहेगा, क्योंकि पेज टेबल ने लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट कर दिया है। उसने ये बता दिया है सीपीयू को कि पेज नंबर 1 आप प्राइमरी मेमोरी में 24th लोकेशन से लोड करना स्टार्ट कर सकते हैं या रीड करना स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे ही 24/02 जनरेट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी मेमोरी में 24th लोकेशन पे जाओ और 24th लोकेशन के बेस एड्रेस से 012 मतलब कि 2 इंडेक्सिंग पर जो अल्फ़ाबेट है वही आपको रीड करना है। तो 24th लोकेशन पर हम गए, ये रही 24 लोकेशन प्राइमरी मेमोरी की। और 2 इंडेक्सिंग का मतलब हुआ 012, दैट इज अल्फ़ाबेट जी। तो जी को हम प्रॉपरली रीड कर लेंगे या जी को हम प्रॉपरली राइट कर देंगे। तो ऑलरेडी अगर प्राइमरी मेमोरी में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये एक रीडिंग ऑपरेशन है। और अगर यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई नहीं देता तो हम हार्ड डिस्क से पेज नंबर 1 का जो अल्फ़ाबेट जी है उसको यहाँ से राइट कर देते हैं। तो राइट करने के बाद ये आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से हार्ड डिस्क के अंदर किसी भी पेजेस के कॉन्टेक्स्ट को, किसी भी पेजेस के डेटा को प्राइमरी मेमोरी में फिजिकल एड्रेस दिया जाता है और फिजिकल एड्रेस से फिर उसके जो बाइट ऑफसेट है उनके बेस पर, इंडेक्स के बेस पर उसके हर एक अल्फ़ाबेट को प्राइमरी मेमोरी में लोड किया जाता है। और यही पैटर्न होता है रीड करने का, यही पैटर्न होता है राइट करने का। तो रीड ऑपरेशन एंड राइट ऑपरेशन इस तरह से परफॉर्म होता है। तो ये भी एक टेक्निक बन जाती है, क्योंकि हमने हार्ड डिस्क के जो पेजेस हैं उनको लोड किया है प्राइमरी मेमोरी में, इसलिए ये एक तरह की पार्टीशनिंग टेक्निक है। इसको हम कहते हैं पेजिंग। क्योंकि हम पेज पे काम कर रहे थे, हार्ड डिस्क के लॉजिकल पेजेस को हमने फिजिकल मेमोरी में फिजिकल फ्रेम के अंदर लोड किया है। इस तरह के टेक्निक को इसलिए ऐसा नाम दिया गया है पेजिंग टेक्निक।
इसमें एक केस ऐसा हो सकता है कि फिजिकल एड्रेस प्रॉपरली ट्रांसलेट ना हो। तो अगर कोई लॉजिकल एड्रेस इस तरह से जनरेट हो जाता है जिसमें उस एड्रेस पर जाने पर, मतलब पेज नंबर पर जाने पर, उसका जो बाइट ऑफसेट है या जो फ्रेम का जो नंबर है वो अगर अवेलेबल नहीं है, तो उसे हम कहेंगे इनवैलिड एड्रेस। आपके जब आप सी के प्रोग्राम चलाते हो तो कई बार आपको इस तरह की एरर आती होगी, इनवैलिड रेफरेंस या इनवैलिड एड्रेसेस। तो वो ऐसा तभी होता है जब सीपीयू लॉजिकल एड्रेस जनरेट कर देता है बट लॉजिकल एड्रेस का कंप्लीटली फिजिकल ट्रांसलेशन नहीं हो पाता, फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है। उस केस में ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैप हो जाता है और एक मैसेज जनरेट कर देता है, इनवैलिड रेफरेंस, इनवैलिड मेमोरी। राइट। तो इस तरह से एक पेजिंग टेक्निक प्रॉपरली काम करती है। आज के लेक्चर में मैं इतना ही कंटेंट रखता हूँ। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट हो तो क्वेश्चन कर सकता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेगमेंटेशन टेक्निक, जो कि अगेन एक मेमोरी पार्टीशनिंग टेक्निक है। यहाँ तक सभी को समझ आया है?